بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ اے پروردگار پاکستان کی سرزمین جو لوگ ڈاکو ہیں چور ہیں بدماش ہیں ان کے لیے تنگ کر دے اور انسانیت کے لیے بہتری کی کوئی صلح کر دے پروردگار پاکستان کو بچا لے یہ یہاں پر ڈاکو چور اور بدماش انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے 65 سال سے پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے لوٹ مار ہو رہی ہے ہر چور بیٹھا ہوا ہے ہر قاتل بیٹھا ہوا ہے ہر قسم کے انداز بیٹھے ہوئے ہیں وہ زرداری مافیا جو ہے بہت بڑی تقریریں کر رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اس قدر جھوٹ بولنے والا اس قدر بدماش قسم کا آدمی اس قدر قاتل اس قدر ڈاکو اس قدر بےہودہ آدمی اس شخص نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ لحاظ نہیں کیا اپنی بیوی کو قتل کیا 50 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے اس شخص نے یہ برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے کس کو وہ اپنا پتنگ کا جو تھا یعنی MQM کو اس نے تباہ و برباد کر دیا لوٹ کے کھا گیا سب کو کوئی پولیٹیشین کو نہیں چھوڑا کسی سیاستدان کو نہیں چھوڑا کسی انسان کو نہیں چھوڑا حقیقت کیا ہے اس میں فرینڈز آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہے میں ان کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ جناب ان کا جو باپ تھا اس کا نام تھا اپنا جو کوسٹل ایریا سے آیا تھا وہ نواز شریف اپنا زرداری مافیا کا حاکم زرداری اس کا نام تھا وہ کوسٹل ایریا سے وہاں ڈکیتی میں چوری میں کسی بکری چوری میں پکڑا گیا تھا تو وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا نکال دیا گیا اور نکال کے وہ پھر یہاں نواب شاہ آ کر کے 1936 میں آباد ہو گیا یہاں پر بھی اس نے زمینیں بہت تھی زمینیں اس زمانے میں پارٹیشن سے پہلے بہت خالی پڑا ہوا تھا جنگل تھا ویران تھا وہاں پر اس نے زمینیں قبضہ کی اور قبضہ کر کے ایک ہوٹل بھی بنا لیا چھوٹا سا اور اس میں وہاں پر لوگوں کو کرایہ بھی رہتا تھا اور نیچے بیٹھنے کی بیٹھک بھی بنائی ہوئی تھی بڑی اچھی قسم جب پاکستان بن رہا تھا 1947 میں تو ہوا تھا یہ کہ جناب اس نے تیاری کر لی اپنے لوٹ مار کی پارٹیشن جب بن رہا تھا تو لوگ اپنی نفسا نفسی کے عالم میں تھے لوگ جو بڑی بڑی زمینیں چھوڑ کر کے گئے تھے یہاں سے اس نے ایک بڑی زمین کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے اوپر اس نے ہوٹل بنایا سوری اپنا وہ بنایا اپنا سنیما بنایا بیمبینو سنیما نام تھا اس کا اور وہ پاکستان میں ایک نیا آرکیٹیکٹ آیا تھا جو وہاں کا بڑا مشہور وہ تھا ایک ہی آرکیٹیکٹ تھا ایک ہی کنسلٹنٹ تھا وہ اور اس نے سب بنا کر کے ان کو ڈیزائن بنا کے دیا اس کو انہوں نے آفس بھی وہاں پر دیا تھا اور اس نے جناب حاکم علی زرداری نے یہاں پر اپنی دوسری شادی کر لی تھی وہ شادی سے یہ دوسرا سوتیلی ماں کا بیٹا تھا تو اس نے کہا اسے بدتمیزی کرتا تھا اس کے ساتھ اس نے گھر سے نکال دیا جب گھر سے نکال دیا تو یہ اپنا کبھی ادھر پھرتا تھا کبھی ادھر پھرتا تھا یہ حیدرآباد میں وہ اپنے بدین میں وہ ایک مرزا تھا جس کو بعد میں اس نے وہ بھی بنایا اپنا منسٹر اور اس نے بڑے ظلم بھی کیے وہ ایک حیدرآباد کی فیملی تھی جو رچ فیملی تھی اس کی بیوی جو تھی وہ یہاں اسپیکر بھی تھی تو اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی رکھتا تھا یہ اور اس کو بعد میں اس کو وہ ہر شخص کے ساتھ ایک ناجائز تعلقات رکھتا تھا کچھ نہ کچھ حرکتیں ضرور کرتا تھا اس زمانے میں یہ جوان تھا اور یہ اس میں بھی حیدرآباد میں ایک وہ ہے اکیڈمی اس میں یہ اکیڈمی میں کچھ وہ لوگ پڑھتے تھے جو آرمی کے لیے کیڈٹ ہوتے ہیں وہ اس کی کلاسیں ہوتی تھیں وہاں پر یہ اس کے ساتھ میں ڈاکٹر جو اس کا اپنے بڑا اچھا ہاسپٹل کی جگہ اس کو یونیورسٹی بنا کے دی ہے اس کو اور اپنے اس ڈاکٹر نے باقاعدہ پھر ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھے اور تباہی بھی بہت ہوئی ہے
मुख्तसर अर्ज करने का मतलब ये है कि ये शख्स डाकू की औलाद है, और ये कभी मारा मारा फिरता था, कभी ये लियारी में रहता था, कभी कहीं रहता था। ये इसकी शख्सियत थी। फिर ये हुआ कि जनाब लियारी में रहते हुए इसे मौका मिला अपने दोस्तों के साथ, स्मगलरों के साथ, करेक्टर के बड़े खबीस किस्म के लोग जिनका मैं बता नहीं सकता। वहाँ पर हर किस्म के नशे होते थे, हर किस्म का अड्डे बने हुए थे, हर किस्म का सिस्टम चल रहा था। वहाँ से बेनज़ीर से शादी के लिए इन्होंने 89 में ज़ियाउल-हक के मर्डर के बाद, ज़ियाउल-हक का मर्डर किया था अमेरिका ने, और CIA उनके साथ में थी। अपने आदमी भी 4 इन्होंने मरवाए थे, जिसमें तो हम सेक्रेटरी और बड़े टॉप के लोग मौजूद थे, और इनके आदमी भी मौजूद थे। मिर्ज़ा असलम बेग उस ज़माने में जनरल उसके थे, और ये भावलपुर में जाकर के लिए बहाना बनाया गया था कि वो देखने के लिए गए थे, और वहाँ पर ने ज़ियाउल-हक को बाकायदा आम की पेटियों में वो कुछ बारूद कर रख के उसको उड़ा दिया गया जहाज को। ये खास काम किया हुआ था। उसके बाद फिर ये जो था ये जब चला गया तो इसके बाद इसहाक खान ने टेक ओवर कर लिया एज अपने चेयरमैन सेनेट। वो सिलेक्ट होने के बाद चेयरमैन टेक ओवर कर सकता है, उसको ताकत होती है। अर्ज ये करने का मकसद है कि जब ये प्रेसिडेंट की हैसियत से टेक ओवर कर लिया, मिर्जा असलम बेग ने अपने सेनेटर की प्रेसिडेंट की हैसियत से नहीं, चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि भाई आप खुद वो कीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग प्रेसिडेंटशिप, और वो खुद उन्हें छोड़ के इनको इसहाक खान को अलाउ किया कि भाई आप बनाइए, आप ही कीजिए। ये इस तरह से उनका टेक ओवर कर लिया गया, और प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बन के उन्होंने जनाब देखा कि लाइन में कौन है भाई, नंबर 1 कौन है, उन्होंने बेनज़ीर को बुला के बना दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब बनी तो इनको जरदारी ने घर में ऐसे रखा जैसे गुलाम होती है, कोई नौकर होती है, कोई या कोई जैसे इस्तेमाल करने वाली कोई चीज होती है जनरली। क्योंकि ये अपने बदमाशों को बुला के बैठाता, उनको शराब पिलाता, खाने खिलाता, उनके साथ दावतें होती, और ये इससे कहते हैं कि तुम खाना बना के लाओ और तो मेरे दोस्त आए हुए हैं। गरज ये कि वो इस तरह के हालात होते थे, और ये बड़ी बड़ी ताकतवर पोजिशन होती। हालात ये हुए कि एक दिन एक ज़माने में फिर ये एक दफ़ा इलेक्शन हुआ, उसमें 10% करके निकाल दिया गया, सिर्फ 2.5 साल में। 2.5 साल के बाद फिर ये, और फिर बोल रहा है कि भाई अब देखो कौन है लाइन में, तो जा करके इंक्वायरी करी, और इंक्वायरी करके पता किया कि वो जनाब अपने नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं होता था, वो खाली दिखाने के लिए होता था, बाकी ये सारा काम ये होता था कि अपना इलेक्शन वो दिखा दिया करते थे। खैर इस तरह से इलेक्शन में या सिलेक्शन में ये नवाज शरीफ आ गए। नवाज शरीफ वो 10% में निकाला गया था कि वो 10% कहलाते थे, और 10% का वो खिताब मिल गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने बेनज़ीर को बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन ये कोई बात नहीं, उन्होंने दरगुजर किया। अब आ गए नवाज शरीफ के साहब लाइन में है, ये नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ जो थे वो उनसे डबल निकले, वो हमने 25% पे पहुंच गए कि ये तो टैक्सी, पीली टैक्सी निकाली, पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, और उसके बाद में लूट मार का निज़ाम निकाल दिया। हर आदमी अपने जो सरकारें भेज दिए कि जाओ मार्केट में लोग तलाश करो और माल बेचो। माल मुराद से क्या, वो अपना जो भी होता था वो अपना रिक्वेस्ट करते थे, कोई पूछता था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो अच्छा जी तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो, खूब प्लाट लो, खूब अपने अय्याशी करो, और शराब खाने खोलो और तैयारी करो, हर किस्म का माल, पार्टियां करने के लिए बड़े बड़े इन्होंने लोगों को अपने करीब किया। यहाँ तक हुआ कि इन्होंने एक होटल यहाँ पर बहुत बड़ा वो था जिसको ऑक्शन कर रहे थे,
वो 50 करोड़ का भी नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा का था। उसको कुल 20 करोड़ के अंदर 20 करोड़ के अंदर बिकवा दिया। ऊपर से कुछ अपना कई करोड़ रुपए अपने कमीशन के भी ले लिए, और लेने के बाद में वो होटल टॉप ऑफ द लाइन होटल था पाकिस्तान का, वो वहां पर अपना मरी का। खैर, ये जनाब मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के सारे सिलसिले इन्होंने भी शुरू किए, तो ये 25% टैक्स पे पहुंच गए। फिर इनको जो हटाया गया, तो उस वक्त भी 2 साल 3 पौने 3 साल हो गए थे, इनको उसमें निकाल दिया गया। जब निकाला गया तो एक और सिलसिला चलता है कि बेनजीर को दोबारा लाया गया। इस तरह 3 दफा इनको लाया गया, और ये जरदारी ही प्राइम मिनिस्टर होता था, और जरदारी ही की वो अहमियत होती थी। और वो जो था वो जानता था इसहाक खान कि ये बदमाश है, ये लुटेरा है, ये डाकू है। इसके सारे इन लोगों के पास सारी रिपोर्टें CIA की पहुंच जाती हैं। आखिरकार होता क्या है कि ये फिर निकाल दिए जाते हैं, और उनको 2.5 साल भी नहीं लगता है, बल्कि पहले ही निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद में ये बन जाते हैं 50%। अब ये 50% बने थे, इन्होंने तीन 3.5 करोड़ रुपया सिर्फ इलेक्शन और ये अपने ये लोगों को बंदरबाट करने के लिए वो अलहदा रख लिया था कि ये मुझे इस काम के लिए रखना है। बाकी जमीनें लूटते रहे, और लोगों को, बिल्डर्स को पकड़ पकड़ के उनको कमीशन वो देते रहे, उनके साथ पार्टनरशिप होती रही। पूरी दुनिया में सिलसिला चल रहा था, हर जगह इनकी लूटमार का सिलसिला चल रहा था। अल्टीमेटली फिर होता है कि जनाब ये भी निकाल दिए जाते हैं। फिर जरदारी माफिया से ये सब 3 3 दफा अपना वो लेते हैं, और लेने के बाद में ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने कभी जिंदगी में पाकिस्तान के लिए नहीं कुछ किया, बल्कि पाकिस्तान को तबाह किया है। यानी पाकिस्तान, कराची की जो आबादी थी एक ज़माने में 40 लाख थी, जो 40 लाख से मैक्सिमम वो इससे आगे नहीं जा सकती थी। ये 2000 में ये तय हो गया था कि इसकी आबादी जब 40 लाख से ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा, फिर डेवलपमेंट की जाएगी, और फिर उसके बाद इसको मॉडिफिकेशन बन किया जाएगा कराची का। नहीं कर सके, कराची वैसी रहा। आज कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है, और उसमें कच्ची आबादियां उसके अलावा हैं, और उसके अलावा जो तमाम आबादियां हैं उनके अंदर भी सारी करप्शन, लूटमार, और सारे सिंध से लाके बसाए जाते थे ताकि आबादी हमारी बढ़ जाए, इलेक्शन में सारे ये लोग आए। जो भुट्टो ने किया था वो ये भी कर रहा था। किसी कोई अपना असेंबली नहीं थी, कोई असेंबली का कानून नहीं था, किसी किस्म का कोई कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जो, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था, वो इस वक्त इसका उसका माल था, बल्कि वो अपने माल को बेचा करता था। गर्ज कहने का मकसद ये है कि ये जरदारी माफिया ने हर सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया था। और फिर ये होता है कि जनाब ये फिर ये करता है कि अपने जितने भी हम उनके वो थे, वो अपने, इसने एक और हरकत ये की थी कि ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इस शख्स ने कोई किसी किस्म की जंगलों से डाकुओं को लेके आता था, और यहाँ पर ला करके बसाता था, उनसे पैसे भी लेता था, कमीशन लेता था बाकायदा। यहाँ तक होता था कि जब इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन के लिए भी वो कोशिश करता था कि मैं सारे आदमी जो है अपने लेके आऊँ। जरूरत ही नहीं थी, उसके पास हर किस्म की मौजूद थी, फैसिलिटी मौजूद थी, उसके पास ताकत मौजूद थी। ताकत किसकी थी? चोर, बहुत बड़ा चोर भी था, डाकू भी था, बदमाश भी था, और उसके अलावा बुजदिल भी बहुत था। ये एक दफा तो ये हुआ था, मैं आपको ऐसी वाक्य बता दूं कि कहीं पर ये कुछ बन बना गया था वजीर आजम के साथ ही,
कहीं ये नीचे हमेशा डर की वजह से ये कई मंजिलें होती थी, खाने के अंदर जाके गन लेकर के बैठा होता था कि वो चीखता था, चिल्लाता था कि मार दूंगा, तो इस तरह ये पागल हुआ था। जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं, दौलत ज्यादा हो जाती है, तो आदमी बुजदिल भी हो जाता है, उसको बचाने के लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरह जनाब उसने ये किया कि जनाब तमाम मामला ये खराब हो गए, बेनज़ीर चली गई, और बेनज़ीर जो थी वो अपने शौहर को कई दफ़ा कह चुकी थी कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तलाक भी नहीं देना चाहती, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। अब तुम वहाँ अपना वहाँ से निकाले गए थे ना जब ये तीसरी दफ़ा, तो वो इनसे नाराज़ होकर के इनसे बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म करके वो इनको छोड़ गए थे अपना दुबई में, और ख़ुद वो अमेरिका चली गई थी, और अमेरिका में उन्होंने खूब ऐसी की, खूब अपने ऐशो आराम करती रही, और फ्रेश होके वहाँ नहीं। कोंडोलेज़ा राइस से अलावा भी बहुत बड़े बड़े लोगों से इनके ताल्लुकात थे, और कुछ ऐसे भी थे जो उनके ताल्लुकात, और शौकीन भी थी बहुत सारी, हर चीज़ की शौकीन थी। जो जरदारी शौकीन थे, उनके शौहर भी शौकीन थे, इनका बाप भी शौकीन था बहुत, वो जो काम करने के लिए, जो काम आम तौर से मैं बता नहीं सकता। अल्टीमेटली होता यही है कि करप्शन करप्शन ये इनका शौक था, और दोनों का शौक था। और बेनजीर ने तो फिर ये हुआ कि इनको तकरीबन छोड़ दिया था। कराची आई, अपने कंडोलेज़ा राइस से बाकायदा इन्होंने, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने इनको अलाउ कराया यहाँ से अमेरिका में, या कॉल की, और कॉल करके कहा कि इनको फौरन आप अपना इलेक्शन का टाइम दीजिए, और ऑनेस्टली इनको अलाई की। बेनज़ीर ने ये किया था कि ये अपने शौहर के को छोड़ा था, वहाँ बच्चों को भी, और बच्चों को लिए उसके बाद उन्होंने ये सिलसिला किया था कि बच्चों को वो साथ रहता था हैदराबाद में। यहाँ पर ये इलेक्शन की ऑफर हुई थी, और उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ एक लियाकत बाग है, कहीं लाहौर में है, पिंडी में है, वहाँ पर लियाकत बाग में इन्होंने इलेक्शन के लिए अपनी वहाँ कोई स्पीच करनी थी, और वहाँ पब्लिक बहुत सारी जमा हुई थी। उसके बाद ये जो इन्होंने मर्डर का सिलसिला किया, उसकी बड़ी तफसील है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको तफसील अर्ज की है कि उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह किया। आगे की तरफ जो इन्होंने किया है, उसके बाद के हालात तो आपको बड़े गंभीर हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म के हालात आप देखेंगे और आप सुनेंगे, तो आपको बड़ा ताज्जुब भी होगा, खुशी भी होगी, अफसोस भी होगा। और ये देखेंगे हमारे यहाँ कैसे कैसे बदमाश, और ये जो है ये कैसे कैसे तबाही मचाते हैं, कैसे कैसे तबाह करने वाले लोग हैं। मुल्क के दोनों पार्टियां जो है ये आगे पीछे बनती नहीं है, और इन्होंने मुल्क की तबाही का जो किया है, वो इतना तबाह कर दिया, इतना फौज को भी बिगाड़ा, इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है, आर्मी के लोगों को बिगाड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट को भी बिगाड़ा है, तमाम गुंडागर्दी सब कुछ की है। आइंदा सुनाने के लिए आपको मैं बेहतर टाइम निकाल के आपको बताऊंगा कि व्लॉग में क्या इन्होंने किया है, पाकिस्तान की तबाही का राज क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।